Okay, so till now we have discussed about our access modifier. So this is the complete versions of public, private, and protected we have discussed. Now we will start another thing. It is very much important in our Java. That is the exception handling mechanism. Now, first, before knowing the exception handling, we will know first what is exception. What we call the exception. Now, exception is what? Exception is a problem that arises during execution of a program. Now, don't sometimes there is problem occurs, that is what error or exception. Error and exception both are not the same thing. Now, exception arises, that is what your program is conceptually correct, but when you try to execute that program, the error occurred. Like, let's say we are using the two variables a and b. Let's say we are using two variables a and b, and let's say we are giving the value of a as 2 and b is 0, and we are dividing, and c is storing that value, that is a divided by b. So that means 2 is divided by 0. That means what? If you write this program, it is not wrong. We cannot say it as a wrong. Why we will say it is wrong? Because you are declaring a value, a value you have declared, then you have declared b value, and then what you are doing? You are doing the operation that c is what? It is storing the value, that is what we find after dividing a divided by b. Now a has 2 value and b has 0 value, so 2 divided by 0. Now if you see, this program is not wrong. Why it is wrong? But when we try to execute, then it will show error, because 2 is divided by 0. That means what? In mathematical, if we see in mathematics, that means what? It will show infinity, but Infinity, yes. infinity is not present in our computer. There is nothing called infinity in computer. There is nothing called infinity. So that is, it will show. This is the exception. This is what we call the exception. That means your program is right, but during the execution of a program, the problem is occurring. This is what the thing, the exception. Like, this can happen, or user entered an invalid data. Let's say invalid data is what? This is the invalid data. According to the system, this is the invalid data you have entered. This is the invalid data. Or the file which you are thinking, this file is not found. Let's say the file is not found. That is what exception handling is, a task to normal flow of the program. That means the normal flow of the program. To handle the normal flow of the program, we use the exception handling. Now, exception handling doesn't means repairing an exception. That means we are solving that exception. It is not like that. Exception handling, that means exception is occurring and exception should be occurred. Now, it is the proper way to handle that exception. It is, we can say in other words, it is rather defining the alternative way, and continue the rest of the program normally. That means it is not repairing the exception. It is what? It is handling that exception and make to continue the rest of the program normally execute, so that our program can normally execute. Now, how the exceptions is handled in Java? Now, for exception, it can be handled for every thread. JVM will create a runtime stack. That means if we created, let's say, when a program, this is a program, let's say. So in this program, this is the class.
Okay, so this is a class, and inside this class the main method is mentioned, and inside this main there is method m1 method, m2 method, like this the method is present. Now for every program, JVM will do what? It will create a runtime stack. It will create a runtime stack, and all the method calls are maintained inside this stack. So when you will write this program, inside this program, that how this is in this program, it is main, inside the main method m1 method is present, m2 method is present. There also in the backward section a stack will be created. In backward there is a stack will be created. So according to the method, the stack will be full. That first, when the execution will be started, first m2 will be executed, then m1 will be executed, and after that the main will be executed. So there will be the stack created, and inside this stack, what the first method is going for, the first method is going into the stack is the main method. So for the main method will go into the stack first. It is applicable for every the program we have seen. This runtime stack mechanism will be created. This runtime stack mechanism will be created, and inside this stack, whatever the methods that is present, this method will be ordered. This method will be stored as an order. So first main is the method, so main method is stored inside it. The next method we are going m1 method, so m1 method we go here, and then after m1 method we go to inside m2 method. Now first, how we will solve or execute the program? First m2 method will be solved, then m1 method will be solved, and then our whole public static void main, that method, inside that method whatever the statements, that will be executed. Like this it will be executed. So first m2 method will be solved and it will go outside. Then m1 method, whatever the statement that is present in the m1 method will be executed and it will go outside of the stack. And after, what the main method, after in this main method whatever there is the statement present will be executed, total executed, and then this main method will go out, and then the stack will be empty. So after the stack will be empty, next class will acquire that, and here the next the value will be stored. So like this a runtime stack is maintained, a runtime stack is maintained, and all the methods calls are maintained inside this stack. Now in exception handling, whenever the exception is thrown, JVM prints the exception message. JVM will print the exception message, that whenever the exception will be shown, it will throws the exception. JVM will print the exception message. Now the exception message format will be like that. The exception message format will be, first name of the exception will be mentioned, then the description of the exception will be mentioned, and the location of the exception, that means in which position the exception is mentioned, exception is occurred, it will be mentioned. Or this stack will be, stack trace will be printed. Let's say in this program that we are taking this program, in let's say m2 method, inside the m2 method we have written some code that is throwing the exception, that is creating the exception. So when we will execute that program, that means some code we have written inside this m2 method, and this code is doing what? This code is our doing this code, it is our exception, it is throwing the exception. That means some code is written, it is throwing the exception. Now if this program is executed, let's say this program is executed, then the exception will be shown like this. Now this exception is occurring inside, we are considering that exception, the code written inside this m2 is throwing the exception. That means the code that is present inside this m2
is providing the exception. So it will looks like when we will execute the program, then it will be look like this, that exception in thread main. That means M2 is present where? M2 is present inside the main. M2 is present inside the main. So first, from where this calling, that means it will mention that main first. So exception in thread main. Then whichever exception is occurring. Now basically there is many exceptions name present, but basically we require only two exception maximum. This two exception generally occurs, that is the arithmetic exception and array out of bound exception. These are the two exceptions occurred. Now arithmetic exception is what? Arithmetic exception is the example I have shown you, that if it is divided by 0 like this, then the exceptions occurred. So that is why we are considering that the code written, the same code I have taken an example, that code is written inside the M2. So that means that's why M2 is throwing the exception. That is, it is dividing by 0. So that's why the exception is occurring inside the M2. So that means it is what we called it as the arithmetic exception. The name of that exception is arithmetic exception. So the code there is mentioned that it is divided by 0. So that means the exception, which is the name of the exception? Arithmetic exception. Now this arithmetic exception is what? This arithmetic exception is a class. Like we have already seen, exception is also a class. And this class, if a class is there, then that means that class is mentioned in the package. That class should be mentioned in the package. So arithmetic exception is occurring, and this arithmetic exception is what? This arithmetic exception class is present in java.lang package. So that's why java.lang mentioned .a, that means arithmetic exception, and description of the exceptions. Now what is the description of the exceptions? That it is occurring by divided by 0. That means we are trying to that dividing that by 0. So that's why the exception is occurring. So it is mentioned. And after that, the location of the exceptions. So first, exception will occur in M2. Exception is occurring into M2 first. So that's why this is M2 mentioned, the exception mentioned M2. Now, if this is exception, this M2 method is throwing exception, and if we are not handling this exception, that means here we have didn't use any exception handling code. That means this is also M2 is exception, then this is also totally creating the exceptions. That's why it is showing the stack trace M2, then M1, then M main. So that's why these exceptions will be shown by the JVM. If we didn't use any Java exception handling code. ओके, समझ में आया? कोई क्वेश्चन है तो बोलो। खूब बहुत कॉन्सेप्चुअल जगह है ये, तो इसलिए कि कोई क्वेश्चन अगर वगैरह है तो बोलो। ये समझना, एक्सेप्शन समझने के लिए ये समझना सर, बहुत हाँ, अगर M1 में एक्सेप्शन है तो वो स्टैक में सबसे पहले वो M1 आएगा सबसे ऊपर में। हाँ, अगर M1 एक्सेप्शन है, ठीक बोलो। अगर तुमको ये होगा तो एक्सेप्शन ऑकर होगा, तब फर्स्ट M1 आएगा, तब M1 फर्स्ट शो करेगा, देन मेन शो करेगा। अब देखो इसमें क्या है कि हम कोई एक्सेप्शंस हैंडलिंग कोड यूज नहीं कर रहे। उसको हैंडल करने के लिए क्या है, हम लोग यूज करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक। ये जो एक्सेप्शंस है, ये एक्सेप्शंस क्या है, जेवीएम डायरेक्टली शो कर रहा है। बट हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग एज ए नॉर्मल प्रोग्रामर चाहते हैं कि उस एक्सेप्शंस को हैंडल करें। उस एक्सेप्शंस को हैंडल और सिस्टमेटिक वे से दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक यूज करते हैं। अब ये जो ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो कोड मेरा एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, जैसे ये जो कोड हम दिखाए कि हम तुम तो डिक्लेयर किए int a equal to 10, then int b equal to 0, then
तुम किए कि int c इक्वल टू a by b, अब 10 डिवाइडेड बाय 0, तो ये जो टोटल कोड है ये कोड एक्सेप्शन कर सकते हैं। तो तुम क्या है एज ए प्रोग्रामर, तुम कंपाइलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कि कंपाइलर शो करे वो एक्सेप्शन जनरेट होगा, ये कंपाइलर शो करे तुम नहीं चाहते, तुम एज ए प्रोग्रामर चाहते हो कि उस एक्सेप्शंस को क्या है, उस एक्सेप्शंस को हैंडल करे, तुम हैंडल करो तुम। तो तुम क्या करोगे, वो जो कोड है, वो जो कोड जो एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं उसको ट्राई ब्लॉक में तुम यूज करो। ट्राई ब्लॉक के अंदर जो हम लोग का स्टेटमेंट है जो एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं उसको हम लोग क्या है मेंशन करते हैं, और उसके ही नीचे हम लोग कैच ब्लॉक यूज करते हैं। कैच ब्लॉक क्या करेगा, जब भी कोई एक्सेप्शन थ्रो करेगा उस एक्सेप्शन को कैच कर लेगा ये कैच ब्लॉक, और कैच करके क्या है, तुम क्या है उसके कैच ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स तुम प्रिंट करना चाहते हो उस स्टेटमेंट को तुम प्रिंट कर रहे हो। तो इसके बेसिस में डिफरेंस क्या है देखो, तुम एज ए प्रोग्रामर क्या है एक्सेप्शन जो हो सकते हैं तुम जानते हो कि ये जगह में एक्सेप्शन हो सकते हैं, इसीलिए उसको क्या है सिस्टमेटिक तरीके से तुम उसको हैंडल किए, हैंडल करके उसको प्रिंट किए। बट ये जो एक्सेप्शन ऑकर्ड हुआ, ये जो नॉर्मल एक्सेप्शन जो है, ये नॉर्मल एक्सेप्शन में क्या है जेवीएम क्या है, एक्सेप्शन ऑकर्ड हुआ तो उसको शो कर दिए। तो यही डिफरेंस है, इसीलिए क्या है जो गुड प्रोग्रामर है वो एक्सेप्शन हैंडल करते हैं। एक्सेप्शंस हो सकते हैं ऐसे कोड को वो ट्राई ब्लॉक में रखते हैं और उसको क्या है कैच ब्लॉक देके उस एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं वो। तो यही डिफरेंस है। हाँ, तुम बोल सकते हो कि हाँ हम अगर डायरेक्ट लिख दिए तब भी तो क्या है, तब भी तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है, तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, मगर यही डिफरेंस है। अब देखो ये एक्सेप्शंस के वजह से क्या हो सकते हैं, मानो तुम ये जो है एमोन जो मेथड है, अब तुम कोई ट्राई कैच ब्लॉक कुछ यूज नहीं, ट्राई ब्लैक कैच ब्लॉक तुम एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर रहे हो, तुम छोड़ दियो कि अगर एक्सेप्शन ऑकर्ड होगा तो जेवीएम क्या है जेवीएम देख लेगा, तुम छोड़ दियो जेवीएम के ऊपर। तो मानो कि एमोन जो मेथड है, अब एमोन मेथड के अंदर एक्सेप्शंस ऑकर्ड हुआ, मतलब जो कोड तुम लिखे हो वो कोड एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं। बट M2 मेथड जो है, M2 मेथड में ऐसे कोड प्रेजेंट है, नॉर्मल जो कोड है जो एग्जीक्यूट हो सकते हैं वो प्रेजेंट है। तो क्या होगा, जब भी फास्ट ये जो M1 मेथड को कॉल करने के टाइम पे एक्सेप्शन पा गया तो प्रोग्राम एब्रप्टली क्या होगा, प्रोग्राम एब्रप्टली एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा और वो शो कर देगा कि एरर इन दिस लाइन एक्सेप्शंस ऑकर्ड इन दिस मेथड बोल के शो कर देगा, ऐसे जो स्टेटमेंट दिखा है कि ऐसे शो कर देगा एक्सेप्शन। मगर तुम्हारा जो सेकेंड मेथड था, M2 मेथड था, वो M2 मेथड तो करेक्ट था, M2 मेथड जो था, M2 मेथड के अंदर जो कोड लिखे थे वो तो करेक्ट था। तुम क्या चाहते हो कि हाँ वो एक्सेप्शंस जनरेट किए ठीक है, मगर मेरा M2 मेथड तो रन कर सकते थे, M2 मेथड में तो कोई ऐसे कोड हम नहीं लिखे जिस कारण से वो एक्सेप्शन थ्रो करे। मगर तुम्हारा क्या हुआ, M1 मेथड में जब एक्सेप्शन ऑकर्ड हो गया तुम्हारा प्रोग्राम भी एब्रप्टली क्या है स्टॉप कर दिया एग्जीक्यूटिंग, और डायरेक्टली शो कर दिया कि एक्सेप्शन ऑकर्ड इन दिस वे। तो तुम्हारा नेक्स्ट जो मेथड इसके बाहर में था उस मेथड क्या है, वो मेथड तुम्हारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मगर यही तुम अगर ट्राई कैच ब्लॉक में करते ना, तो ट्राई कैच ब्लॉक करके उस एमोन मेथड को ट्राई ब्लॉक में रख के तुम यूज करते तो तुम्हारा एक्सेप्शंस भी हैंडल होता, और जो नेक्स्ट मेथड है नेक्स्ट मेथड भी तुम एग्जीक्यूट कर पाते। इसीलिए एक्सेप्शंस हैंडलिंग जरूरी है। इसीलिए देखो हम फर्स्ट एक वर्ड मेंशन किए कि एक्सेप्शंस को हैंडल करे ऑल्टरनेटिव वे टू एक्सेप्शन, हैंडल द एक्सेप्शन एंड कंटिन्यू द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, कंटिन्यू द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अगर तुम हैंडल नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा कि जब भी उसको फर्स्ट में एक्सेप्शन ऑकर्ड हो गया तो उसके बाद से क्या है, ये कंपाइलर जेवीएम का दिक्कत है कि जब भी तुमको एक्सेप्शंस पा गया उसके बाद से अगर कोई कोड तुम्हारा राइट हुआ भी वो कुछ नहीं करेगा, डायरेक्ट एक्सेप्शन शो करते कि एक्सेप्शन ऑकर्ड हुआ। तो तुम्हारा इसीलिए क्या है बाकी जितना मेथड्स है, जितना तुम्हारा स्टेटमेंट है जो राइट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट यही अगर हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक में करते ना तो एक्सेप्शंस ऑकर्ड नहीं होता। एक्सेप्शंस उसको जो एक्सेप्शन ऑकर्ड होता मगर उस एक्सेप्शंस को हम हैंडल कर लिए थे,
तब मेरा जो नेक्स्ट मेथड है या नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है मुझे एग्जीक्यूट करना है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली एग्जीक्यूशन हो सकते थे। यही डिफरेंस है, ठीक है, क्लियर? सर अगर हाँ मतलब कोई एक्सेप्शन अगर M1 में है तो सर M2 तो स्टैक हाँ में नहीं आएगा, M2 स्टैक के बाहर रहेगा सर। नहीं नहीं, आप देखो ये जो है एक्सेप्शंस हम क्या बोल रहे हैं, स्टैक में सभी आते हैं कि फर्स्ट जितना मेथड्स है, फर्स्ट M1 में फर्स्ट तुम्हारा मेन मेथड जाएगा, देन तुम्हारा क्या होगा, देन M1 तुम बोल रहे हो कि M1 मेथड में एक्सेप्शंस जो है एक्सेप्शंस ऑकर्ड हुआ, तो स्टैक में क्या है M1 मेथड आए, ठीक है, तो स्टैक में M1 मेथड आने के बाद क्या है उसको देखे कि एक्सेप्शंस ऑकर्ड हो गया, तो वो डायरेक्टली जो है M2 मेथड को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, तो स्टैक में क्यों जाएगा, वो तो नहीं जाएगा स्टैक में। ठीक है सर। और जो आप बोले बोलो। जो बोलो। सर क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, क्या बोलने वाले थे। ठीक है ठीक है, तुम क्वेश्चन जब याद आएगा तब बोलना, हम बोल ठीक देंगे, है। ठीक है। तो यही है डिफरेंस एक्सेप्शंस का, एक्सेप्शंस हैंडल और एक्सेप्शंस अगर जेवीएम हैंडल करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट अगर लेट्स से यही लिखा है देखो कि टू क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बाय इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन नेम डिस्क्रिप्शन and location, exception object goes to the JVM. Then JVM checks whether the exception handling code is present in M2. That means here what I have said that in M2 there is doing the exceptions. Now JVM will first check if there is any exception handling code present in the M2 method, whether the method is handling the exception with try catch block. If yes, then the code in the exception will be execute. But if no, then the JVM will itself handle the exception and throw the message. ये मैसेज थ्रो कर देगा। तो लेट से एक प्रोग्राम हम लोग देखते हैं कि लेट से हम एक क्लास लिए जिस क्लास का नाम है एक्सेप्ट वन। बोलो। सर अगर हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग जो ये प्रोग्राम अगर मतलब कोड डाल के रखेंगे तो जो 2/0 था सर उसका आउटपुट क्या दे देगा सर? ये हम क्या बोले, एक्सेप्शन मतलब ये नहीं है कि तुम एक्सेप्शंस को रिपेयर कर सकते हो। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब समझो, जो एक्सेप्शन एक्सेप्शन का मतलब है कि तुम्हारा प्रोग्राम करेक्ट है, प्रोग्राम लॉजिकली जो है प्रोग्राम लॉजिकली करेक्ट है, मगर तुम उसको क्या है, उसको जब रन टाइम जो वैल्यू दे रहे हो वो वैल्यू ये क्या है लॉजिकली गलत दिखा रहा है, क्योंकि 2/0 तो मेरा कुछ नहीं आ रहा है, इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी बोल के कुछ चीज प्रेजेंट नहीं है। अब ये क्या है, तुम ये कोड को करेक्ट नहीं कर सकते हो। एक्सेप्शन मतलब क्या है, कोड को करेक्ट नहीं करना, ऐसे कुछ नहीं कि कोड को करेक्ट करो। एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शंस मतलब हैंडल कर सकते हो। तुमको जो है एक्सेप्शन थ्रो ही करना है, ये कोड गलत ही होगा। ये कोड जो है गलत नहीं, हम लोग इसको कहते हैं कि ये रन टाइम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मगर दो तरीके से तुम इसको हैंडल कर सकते हो। एक है कि तुम जेवीएम के ऊपर छोड़ दो, तुम पास में साउंड हो रहा है थोड़ा, ये थोड़ा म्यूट करो। ये एक्सेप्शंस जो है, एक्सेप्शंस को क्या है कि तुम उसको, एक होता है कि जेवीएम जो है जेवीएम चेक करेगा कि उसके पास कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड है क्या नहीं, जो हम ट्राई कैच ब्लॉक के बाद बोले कि ट्राई में हम लोग क्या है एज ए यूजर, एज ए गुड प्रोग्रामर जो होता है, गुड प्रोग्रामर क्या करते हैं कि ट्राई ब्लॉक में ऐसे जो हम लोगों का स्टेटमेंट से जो एक्सेप्शन थ्रो करते हैं उसको ट्राई ब्लॉक में रखते हैं, और कैच ब्लॉक में यूज करके क्या है उस एक्सेप्शंस को कैच करते हैं। कैच करके मतलब जो एक्सेप्शन थ्रो करेगा उस एक्सेप्शंस को वो कैच करेगा, कैच करके क्या है
जो उस कैच ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स है वो अपने तरीके से क्या है उस एक्सेप्शंस को शो करेगा। ये यूजर करते हैं। अगर जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम चेक करते हैं कि उसके अंदर कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये ट्राई कैच ब्लॉक का कुछ कोड प्रेजेंट है क्या नहीं, जहां एक्सेप्शन ऑकर हो सकते उधर, अगर है क्या नहीं। अगर नहीं है तो मतलब वो क्या करेगा, वो अपने तरीके से क्या है एक्सेप्शन थ्रोइंग मैसेज शो करेगा। एक्सेप्शन हैंड मतलब ये जो है तुम 2 डिवाइडेड बाय 0 या जो 3 डिवाइडेड बाय 0 ये जो ऑकर हुआ उसमें मैसेज एक्सेप्शन ही शो करेगा। ये नहीं है कि उसको हम ठीक करेंगे, ये ठीक नहीं करना है, वो जो है एक्सेप्शन शो कर रहा है। यही सिर्फ डिफरेंस यही है, एक यूजर के थ्रू, एक डायरेक्टली कंपाइलर के थ्रू, यही है डिफरेंस। अब लेट्स से कि तुम्हारा अगर तुम डिवाइडेड बाय का 0 देखो कि हम लोग एग्जांपल ऐसे लिए कि एक्सेप्शन 1 एक क्लास ले, ये जो है मेन मेथड, एंड मेन मेथड के अंदर हम i इक्वल टू 10 किए और i इक्वल टू i डिवाइडेड बाय 0 किए और उसके बाद i का वैल्यू प्रिंट किए। तो यही क्या है एक्सेप्शन शो करेगा। अब देखो कंपाइलर जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो कंपाइलर क्या चेक करेगा कि उसके अंदर कोई ट्राई कैच ब्लॉक है क्या नहीं। तो देख रहा है कि उसके अंदर कोई ट्राई कैच ब्लॉक नहीं है, इसके अंदर कुछ ट्राई कैच ब्लॉक नहीं है। तो ट्राई कैच ब्लॉक नहीं है अगर सर हम कैच इसको ब्लॉक में इसका रिजल्ट अगर हम 0 डाल देते हैं तो वो मतलब जो प्रोग्राम है उसमें नहीं आउटपुट करेगा। कैच ब्लॉक में 0 नहीं, कैच ब्लॉक हम दिखाएंगे, कैच ब्लॉक में कैसे कैच करते हैं एक्सेप्शन दिखाएंगे। ये हम देखो हम दिखाएंगे वो एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं। बट आप देखो फर्स्ट जब कि नॉर्मल अगर कुछ हैंडल नहीं करते हैं मतलब हम छोड़ दिए हैं यूजर कंपाइलर के ऊपर कि कंपाइलर कैसे उसको हैंडल करे, उसके ऊपर हम छोड़ दिए, तो हम लोग का कैसे आउटपुट शो करते हैं। तो इधर देखो हम कुछ फर्स्ट क्या है कंपाइलर चेक करेगा कि इसके अंदर कोई ट्राई कैच ब्लॉक है क्या नहीं, तो देख पा रहा है कि इसके अंदर कुछ ट्राई कैच ब्लॉक नहीं है। तो मतलब कंपाइलर को क्या है इस प्रोग्राम को, ये जो प्रोग्राम का एक्सेप्शन है उसको हैंडल करना है, जेवीएम को हैंडल करना है क्योंकि इधर यूजर के थ्रू कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड नहीं है। तो इसका आउटपुट क्या शो करेगा, फर्स्ट एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, मतलब ये जो है ये जो कोड है कहाँ में प्रेजेंट है, मेन के अंदर प्रेजेंट है। तो इसके लिए एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, और हम क्या बोले डिवाइडेड बाय 0 मतलब एरिथमेटिक एक्सेप्शन, एरिथमेटिक एक्सेप्शन हम लोग कहते हैं। तो ये एरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास है, तो ये जो एक्सेप्शंस भी है, एक्सेप्शंस हम क्लास है, जावा में जो भी होगा सब एक क्लास है, एक्सेप्शन क्लास, एरर क्लास, सभी एक एक क्लास है। तो ये जो एक्सेप्शन ऑकर्ड हुआ एरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये भी एक क्लास है, और ये एरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास java.lang पैकेज के अंदर मेंशन है। तो इसीलिए वो क्या किए, एक्सेप्शन इन थ्रेड में java.lang अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन java.lang पैकेज में है उसको शो किए। अब किस लिए एक्सेप्शन हो रहा है, क्योंकि हम लोग 0 से डिवाइड कर रहा है, तो इसीलिए वो भी मेंशन किए कि डिवाइडेड बाय 0। अब कौन सा क्लास नेम मेरा क्या है, एक्सेप्ट 1, तो एट एक्सेप्ट 1 क्लास, कौन सा मेथड के अंदर, मेन मेथड के अंदर, तो इसलिए डॉट मेन। और ये जो है हम लोग नोटपैड में जब प्रोग्राम लिखते हैं थे, जब कंपाइल करते थे, कंपाइल के टाइम हम लोग क्या करते हैं, क्लास नेम डॉट जावा देके हम लोग उसको सेव करते थे। तो ये क्लास नेम डॉट जावा और क्लास नेम डॉट जावा के बाद 6 जो है कितने नंबर लाइन पे है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन में डिवीजन बाय 0 हो रहा, तो इसलिए इधर 6 मेंशन है। ठीक है, तो ये टोटल स्टेटमेंट जेवीएम शो करेगा क्योंकि जेवीएम इसके अंदर कोई कोड नहीं पाए, कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड फ्रॉम यूजर वो नहीं पाए। तो वो क्या किया, जेवीएम अपने तरीके से एक्सेप्शन जो है उसको शो किए। उसमें क्या है कि फर्स्ट शो किए कि कहाँ जनरेट हो रहा है एक्सेप्शन इन थ्रेड में,
उसके बाद कैसे टाइप का एक्सेप्शन क्लास है वो ये जो है डिविजन बाय जीरो मतलब एरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब ये एरिथमेटिक एक्सेप्शन कहाँ पे मेंशन है, java.lang पैकेज के अंदर वो मेंशन किए। उसके बाद किस टाइप से वो ऑकर हो रहा है, वो डिविजन बाय जीरो के इसलिए ऑकर हो रहा है। और उसके बाद क्या है, क्लास का नेम देगा, क्लास नेम डॉट मेन। उसके बाद मेन के अंदर क्या है, ये क्या क्या है, जब हम लोग कंपाइल करते हैं तब क्या है, क्लास नेम डॉट जावा देके सेव करते थे, तो क्लास नेम डॉट जावा। और उसके बाद क्या है कि लाइन नंबर, कौन सा लाइन नंबर में डिवीजन बाय जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर लाइन पे, तो इसलिए 6 मेंशन है। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो ये टोटल एरिथमेटिक एक्सेप्शंस का हुआ। मेनली बहुत टाइप का एक्सेप्शंस है, बट हम लोग या तुम लोगों का सिलेबस में भी एरिथमेटिक एक्सेप्शंस है और एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस है। ये दो टाइप का एक्सेप्शंस तुम लोगों को जनरली पढ़ना होगा, बट ये छोड़ के भी बहुत सारे एक्सेप्शंस है। अब जावा का जो मेन पार्ट है, अभी जितने तक ये जावा का मेन पार्ट स्टार्ट होता है इधर से, एक्सेप्शन से। इसके बाद एक्सेप्शंस होने के बाद हम लोग देखेंगे थ्रेड के बाद हम लोग मूव करेंगे, हम लोग जो इवेंट ऑकर्ड हुआ, इवेंट्स हैंडलिंग कोड, देन हम लोग बॉर्डर, देन हम लोग एप्लेट का प्रोग्रामिंग देखेंगे। तो मेन पार्ट्स इस जगह से स्टार्ट होता है। तो ये हम देखें कि एरिथमेटिक एक्सेप्शंस का पार्ट। और एक जो एक्सेप्शंस है वो क्या है, वो एक हम लोग का दूसरे टाइप का एक्सेप्शंस है, वो है एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस। अब एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस क्या है, देखो हम सेम नॉर्मली प्रोग्राम रखे और नेम सेम नॉर्मली प्रोग्राम के बाद हम लोग यूज किए इंटीजर डॉट पार्सिंट। ये जो है इंटीजर, ये रैपर क्लास का कॉन्सेप्ट है, हम डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ जान लो कि रैपर क्लास के अंदर क्या है, हम लोग का 8 क्लासेस है, इंटीजर देन फ्लोट ऐसे करके क्लास है। और पार्स इंट जो है, ये इंटीजर क्लास जो है, इंटीजर क्लास का एक फंक्शन है। इंटीजर क्लास जो है, इस इंटीजर क्लास का एक फंक्शन है पार्स इंट। और ये क्या करते हैं, हम लोग बोले कि जावा में अगर हम लोग जो कमेंट लाइन आर्गुमेंट के थ्रू, अब देखो स्ट्रिंग आर्ग्स हम लोग इसको क्या है, कमांड लाइन कहते हैं। इस कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू अगर हम कुछ वैल्यू उसके पास किए, तो ये जो है इसका मीनिंग है हम लोगों का स्ट्रिंग में वैल्यू आ रहा है। क्योंकि देखो मेंशन क्या है, स्ट्रिंग args, तो हम लोग क्या है, जो वैल्यू मेरा आ रहा है उस स्ट्रिंग से हम लोग अगर यूजर इनपुट ले रहे हैं एट ए कंपाइल टाइम, तो वो क्या है, एज अ स्ट्रिंग टाइप से आ रहा है। तो ये जो पार्सिंट फंक्शन है, ये पार्सिंट फंक्शन हम लोग इंटीजर क्लास के अंदर मेंशन है। तो ये पार्सिंट फंक्शन क्या करते हैं कि जो ऐसे हम लोग का स्ट्रिंग टाइप आर्गुमेंट आ रहा है उसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि हम लोग को अगर डिवीजन करना है, तो डिवीजन में क्या है, कोई वैल्यू या इंटीजर वैल्यू मुझे लेना है, मगर एज ए जब हम लोग कंपाइलर के थ्रू एज ए कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू हम लोग वैल्यू लेंगे, तो हम लोग का स्ट्रिंग टाइप वैल्यू आते हैं। तो उस स्ट्रिंग टाइप वैल्यू को क्या है, हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में उस वैल्यू को मुझे कन्वर्ट करना है। तो इसीलिए क्या है, हम लोग पार्स इंट फंक्शन यूज करते हैं। अब पार्स इंट फंक्शंस में क्या है, पार्स इंट फंक्शंस में मेरा ये जो है वो इंटीजर क्लास, जो हम लोग का टोटल 8 रैपर क्लासेस है, तो ये टोटल 8 रैपर क्लास के अंदर एक क्लास है इंटीजर क्लास। तो ये इंटीजर क्लास के अंदर ये पार्सिंट मेथड मेंशन है। तो ऐसे करके क्या है कि हम लोग कोई वैल्यू मुझे देना होगा एज अ यूजर इनपुट। यूजर इनपुट लेने के लिए हम लोग को दो टाइप है, एक है कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू और एक है मेरा
स्कैनर क्लास के थ्रू, क्योंकि यूजर इनपुट लेने के लिए क्या है, हम लोग जैसे सी में करते थे ऐसे स्कैनएफ हम लोग नहीं यूज कर सकते जावा में। जावा में हम लोग का 2 वेज है, एक है कि हम लोग ऐसे कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू हम लोग लेते हैं कोई वैल्यू कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू, या तो हम लोग कोई वैल्यू जो है उसको एज ए स्कैनर क्लास जो है, स्कैनर क्लास क्रिएट करके, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वो वैल्यू हम ले सकते हैं। हम दिखाएंगे एक के बाद एक जो है वो दिखाएंगे कि कैसे वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। तो ये जो है ऐसे हम लोग वैल्यू लेते हैं। तो अभी मानो कि जो वैल्यू हम लिए उसको कन्वर्ट करके हम इंटीजर में ले लिए, तो ये जो होगा i डिवाइडेड बाय एनी नंबर दैट इज इंटीजर, क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन से हम जो एज ए यूजर इनपुट वैल्यू ले रहा है उसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर, और उसके बाद क्या है हम लोग i वैल्यू जो प्रिंट कर रहा है प्रिंट करते हैं। तो इसमें भी देखो, इसमें भी एरर शो करेगा। क्यों एरर शो करेगा? क्योंकि जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग का रन टाइम एक मानो कि इनपुट चाहेगा रन टाइम देने के लिए, क्योंकि उधर हम लोग एज ए यूजर इनपुट ले रहा है तो मतलब रन टाइम मुझे कुछ इनपुट देने बोलेगा। तो हम मानो कि इनपुट नहीं दिए, इनपुट कुछ नहीं दिए, एट ए रन टाइम हम इनपुट कुछ भी नहीं दिए और डायरेक्टली क्या है हम लोग एंटर मार के उसको एग्जीक्यूट करने चाहते हैं, तो भी क्या है एक्सेप्शन शो करेगा। क्यों ये शो करेगा? क्योंकि इनपुट देने चाहते हैं कि ये जो है ये args जो है, ये स्ट्रिंग args जो है इसके 0th पोजीशन को हम लोग क्या है पास करें, मतलब 0th पोजीशन में जो वैल्यू है उसको क्या है, उसको 0th पोजीशन में जो वैल्यू है उसको हम लोग चाह रहे हैं पास करने। बट हम लोग क्या है जब हम लोग इनपुट देने गए तो उस टाइम हम लोग बाय चांस या बाय प्रॉब्लम उसको क्या है हम मिस कर गए या नहीं दिए, तो तब क्या है, तब भी मेरा एरर शो करेगा और वो एरर का नाम होगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि जो 0th पोजीशन का जो वैल्यू है वही तो हम नहीं दिए। तो कैसे मेरा अगर कोई यूजर इनपुट हम नहीं दिए तो कैसे हम लोग आउटपुट देखेंगे, ये तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए इसका भी एक ये जो है इसको हम लोग जो प्रॉब्लम है ये एक्सेप्शंस है, इसको कहते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट क्लास ये जो है नेक्स्ट क्लास और भी हम लोग डिटेल्स देखेंगे इसके बारे में, और ट्राई कैच ब्लॉक कैसे यूज होता है वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में टोटली देखेंगे। सर नोट्स दे दीजिए ना व्हाट्सएप में। थैंक यू एवरीवन। ये तुम लोगों का पिछले का नोट्स हम भेज देंगे, ये वाला नोट्स भी हम भेज देंगे तुमको, तुम लोगों को, और इसके आगे वाला जितना नोट्स है वो तो तुम लोगों को मिल गया है, हम व्हाट्सएप में दे दिए थे यस सर। ग्रुप में, हम इसका भी नोट्स हम दे दें, और कोई जगह में कोई क्वेश्चंस होगा तो तुम लोग कभी भी पूछ सकते हो। ओके, तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन।